નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાવના સંતો ડેડિયાપાડાના જીર્ણ થઈ રહેલા હિન્દુ મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરશે। સેલવાવ જલારામ મંદિરમાં નવરાત્રીના આઠમના હવન કરવામાં આવ્યા। केशव बटाके हाई कमिश्नर आमंत्रणे गांधी जयंती कार्यक्रम में लंडन पहुंचा। 16 नवंबरे अभिमान अस्तित्व और हक अधिकार जन आंदोलन रैली शुरू थशे। हवे समाचार विगतवार जोईए। आदिवासीओना उत्कर्ष अर्थे ऊंडाणना गामडाओ खूंटा सेलवावना संतोए डेडियापाड़ा विस्तारनी मुलाकात लीधी हती અને આ વિસ્તારમાં જીર્ણ થઈ રહેલા હિન્દુ મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે સંકલ્પ લીધો હતો। આ વિસ્તારમાં ગરીબ આદિવાસી પરિવારોને ભોળવીવટા પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોય તે જોઈને સંતોએ ખેદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો અને સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે જાગૃતિ લાવવા કૃત સંકલ્પ કર્યો હતો। સેલવાવના સંત પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી કેશવચરણ દાસજીની આજ્ઞા અનુસરી પૂજ્ય કપિલ સ્વામીજી તથા પૂજ્ય રામ સ્વામીજી સાથે ભરૂચ અંકલેશ્વર નજીકના દેડિયાપાડા વિસ્તારની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી। ત્યાંના આગેવાનોએ મળી અને તેમની સાથે પગપાળા વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી પૂજ્ય કપિલ સ્વામીજીએ જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી ગામડા ભલે વાપી કે દેડિયાપાડા પંથકના હોય ત્યાં હિન્દુ ધર્મ સ્થાપન સાથે આદિવાસી બંધુઓનો જરૂર ઉત્કર્ષ થવો જોઈએ। आदिवासी प्रत्येनी भावना भक्ति साथे गुरु शिष्यनी बेलडी ऊंडाणना गामडाओ खूंदी सनातन संस्कृति ने धर्म रक्षा अर्थे वर्षोथी अभियान चलावी रह्या छे। श्री स्वामीनारायण ज्ञानपीठ सेलवावना स्थापक अने प्रेरणा स्त्रोत सद्गुरु पुराणी पूज्य केशवचरण दासजी स्वामी अने संस्थाना संवाहक शास्त्री स्वामी कपिल जीवन दासजी बंने गुरु शिष्य अने तेमना शिष्य पूज्य राम स्वामीजी साथे शनिवारे देडियापाड़ा विस्ताરના ગામડાઓની મુલાકાત લીધી હતી। અહીંના આગેવાન ગણાતા સોનજીભાઈએ મળી તેમની સાથે સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું। એટલું જ નહીં, અહીં ઘણા હિન્દુ મંદિરો જેવા કે માતાજીના, હનુમાનજીના, શિવજીના અને ભાતીજી મહારાજના મંદિરો જીર્ણ હાલતમાં જણાયા હતા। કેટલાક ગામડાઓમાં તે મંદિરો અપૂર્ણ છે। આવા 5 મંદિરો પહેલા પ્રયત્ને જીર્ણોદ્ધાર કરવા દૃઢ સંકલ્પ કરી શ્રી સ્વામિનારાયણ જ્ઞાનપીઠ સેલવાવ વાપી અને યુએસએ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। આ વિસ્તારમાં ગરીબીના કારણે વટા પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ ફૂલી ફાલી છે, જે દુઃખદ અને ચિંતાજનક છે। આજે સનાતન સંસ્કૃતિ અને ધર્મને બચાવવો હશે તો ચોક્કસ આવા ગામડાઓ પ્રતિ અભિમુખ થવું પડશે। સંસ્થા દ્વારા વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં આવી સેવા પ્રવૃત્તિઓ વર્ષોથી ચાલી રહી છે। હવે સંસ્થા નર્મદા જિલ્લામાં પણ આવા મંદિર નિર્માણના કાર્યો દાતાઓના સહયોગ સાથે કરશે એમ શાસ્ત્રી કપિલ જીવન સ્વામીએ જણાવ્યું હતું। ડેડિયાપાડા તાલુકાનું રોહદા ગામ છે। આ જીર્ણ થયેલું મંદિર માતાજીનું મંદિર છે, જે પ્લાસ્ટર, શિખર, રિપેરિંગ એ માંગે છે। આજે અમે આ વિસ્તારના હિન્દુવાદી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે જોડાયેલા ભાઈ શ્રી સોનજીભાઈ સાથે ગામની મુલાકાત લીધી અને આ મંદિર આપણે રિનોવેશન સંપૂર્ણ રીતે કરી અને જે કંઈ માતાજીની મૂર્તિ છે મૂર્તિને પ્રતિષ્ઠાપિત કરી અને ગામને ફરીવાર સોંપશું એનો અહીંયા સંકલ્પ કરીએ છીએ। આ ગામ છે, આ જે સ્થળ ઉપર અમે ઊભા છીએ એ ભાથુજી મહારાજનું મંદિર બની રહ્યું છે, પણ ગામની પરિસ્થિતિ, નાના માણસો, સામાન્ય ખેડૂતો ખેતમજૂરોમાં પોતાનું જીવન પરિવાર સાથે ચલાવતા હોય તો આ વિસ્તારની અંદર આ વિસ્તારના આગેવાન સોનજી ભગત ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે। હિન્દુત્વનું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે પણ જોડાયેલા છે, સનાતન સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા છે અને એની સાથે સ્વામિનારાયણ જ્ઞાનપીઠ સેલવાવ વાપી યુએસએ જોડાય અને આ વિસ્તારની અંદર આવા જે કંઈ અધૂરા મંદિરો છે એને પૂર્ણ કરવા, એને પ્લાસ્ટર કરવું, મૂર્તિઓ પધરાવી, પ્રતિષ્ઠાપિત કરવી, જરૂરિયાત પડે ત્યાં શેડ બનાવવા, આ કામની જવાબદારી સ્વામિનારાયણ જ્ઞાનપીઠ યુએસએ દ્વારા સોનજીભાઈના માર્ગદર્શન નીચે આ ગામના જે કોઈ ભક્તો છે એ ભક્તોની સુખાકારી માટે આ વિસ્તારમાં આ જગ્યા ઉપર આ સરસ મજાની પવિત્ર ટેકરી છે। આ ટેકરી ઉપર ભાથુજી મહારાજનું એક સરસ યાત્રાધામ બને એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આ ગામને આપણે, આ મંદિરને આપણે રિનોવેટ કરવાનો
સંકલ્પબદ્ધ થઈએ છીએ. સલવાવના જલારામ મંદિરમાં નવરાત્રીના આઠમના હવન કરવામાં આવ્યા. સલવાવ મહાયવંશી ફળિયામાં જલારામ બાપાના મંદિરની સ્થાપના 1998માં કરવામાં આવી હતી, જે આ મંદિરમાં વર્ષના દરેક ધાર્મિક મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જલારામ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા વર્ષના ધાર્મિક મહોત્સવ રામનવમી, જલારામ બાપાની જન્મ જયંતિ, ગોકુળાષ્ટમી, દહીહાંડી, ગણેશ મહોત્સવ, નવરાત્રી, શરદ પૂનમ જેવા ધાર્મિક મહોત્સવ સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ સાથે ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો કેશવ બટાકે હાઈ કમિશનરના આમંત્રણે ગાંધી જયંતિ કાર્યક્રમમાં લંડન પહોંચ્યા. 16 નવેમ્બરે અભિમાન, અસ્તિત્વ અને હક અધિકાર જન આંદોલન રેલી શરૂ થશે. વાપીમાં સસ્તી અને સુંદર કાપડની દુકાન એટલે વેડિંગ બેલ્સ અને ઇન્દ્રપ્રસ્થ એન્ટરપ્રાઇઝ. અમારે ત્યાં લગ્ન પ્રસંગની તમામ કપડાઓની ખરીદી વ્યાજબી ભાવે અને નવીનતમ વેરાયટીઓ, દુલ્હન લહેંગા, ચનિયા ચોળી, સાડી, સરારા, ઘરારા, ક્રોપ ટોપ, કુર્તી, જીન્સ તથા દરેક પ્રકારની કપડાની વેરાયટીઓ મળી રહેશે. અમારી દુકાનમાં સસ્તી અને ક્વોલિટી વાળી વેરાયટીઓ મળશે. બીજા કોઈ દુકાનોમાં તમને ડ્રેસના ફોટા પાડવા લેતા નથી, પરંતુ અમારી દુકાનમાં તમે ફોટા લઈ શકો છો. બીજાની દુકાનો સાથે કમ્પેર કરીને અમારે ત્યાંથી એકવાર ખરીદી જરૂરથી કરશો. અમારું એડ્રેસ છે શોપ નંબર 3 and 4, હવેલી આર્કેડ, સ્ટેશન રોડ, ગીતાનગર, વાપી ઈસ્ટ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. કેશવ બટાકે હાઈ કમિશનરના આમંત્રણે ગાંધી જયંતિ કાર્યક્રમમાં લંડન પહોંચ્યા. ગાંધીજીને મહાન વિભૂતિ ગણાવ્યો. લંડનમાં નવા આવેલ ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનર વિક્રમ કે દોરાઈસ્વામીને એનઆરઆઈ સિટીઝન્સ વતી વેલકમ કર્યો. લંડન એનઆરઆઈ ગ્રુપ લંડન યુકેના કન્વીનર કેશવ બટાકે ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનરના આમંત્રણ પર સેન્ટ્રલ લંડનમાં ગાંધી જયંતિના સરકારી કાર્યક્રમમાં સામેલ થતા લંડન સ્થિત ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનર દર વર્ષે ગાંધી જયંતિના સરકારી કાર્યક્રમમાં એનઆરઆઈ ગ્રુપના કન્વીનર કેશવ બટાકને ઇન્વાઇટ કરે છે. કેશવ બટાકે આ આમંત્રણ મળતા સાથે ફ્લાઇટ પકડી સીધા લંડન પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં ગાંધી જયંતિના કાર્યક્રમમાં નવા આવેલ ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનર વિક્રમ કે દોરાઈસ્વામીને મળીને લંડન યુકેના એનઆરઆઈ સિટીઝન તરફથી લંડનમાં તેમનો વેલકમ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ગાંધીજીના સ્ટેચ્યુ પર પુષ્પાંજલિ અર્પી સત્ય અહિંસાના પૂજારી એવા મહાત્મા ગાંધીજીને યાદ કર્યું હતું. એનઆરઆઈ ગ્રુપ લંડન યુકેના કન્વીનર કેશવ બટાકે જણાવ્યું હતું કે બાપુ લંડનથી પણ સંકળાયેલ હતા. બાપુ વકાલતની પઢાઈ અને ગોળમેજ સંમેલન માટે લંડન આવ્યા હતા. અમે અહીં લંડનમાં બાપુને તેમની જયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરી આત્મીય ખુશી અનુભવી રહ્યા છીએ. બાપુનો સિદ્ધાંત આજે પણ દુનિયાના પથ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગાંધી જયંતિના કાર્યક્રમમાં ત્યાંના મેયર, અનિવાસી ભારતીયો અને ગણમાન્ય લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સર્વધર્મ પ્રાર્થના અને બાપુના પ્રિય રામધૂન પણ ધવાયા હતા.
સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો 16 નવેમ્બરે અભિમાન અસ્તિત્વ અને હક અધિકાર જન આંદોલન રેલી શરૂ થશે. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. દાદરા નગર હવેલીમાં શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ એક થઈ ગયા છે. જનતાએ હવે વિપક્ષની ભૂમિકા મક્કમતાથી ભજવવી પડશે, કારણ કે લોકશાહી બચાવવાનો પડકાર હજુ સામે છે. 16 નવેમ્બરે સ્વાભિમાન અસ્તિત્વ અને હક અધિકાર જન આંદોલન રેલી શરૂ થશે. તે જ દિવસે ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિ અને સ્વાભાવિક રીતે સભાના દિવસે મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવશે. દાદરા નગર હવેલીમાં સેંકડો દુકાનો તોડી પાડવામાં આવી છે. ભાજપ વેપારી એસોસિએશન હજુ સુધી તેના પર બોલ્યું નથી. ટૂંક સમયમાં વેપારીઓની સુરક્ષા માટે એસોસિએશન બનાવશે, જેથી લાચાર વેપારીઓનો અવાજ ઉઠાવી શકીએ. હવે દાદરા નગર હવેલી સ્થાનિક સમાજે પોતાના હકની રક્ષા માટે રસ્તા પર આવવું પડશે, નહીં તો ચૂંટાયેલા નેતાઓ અને કેટલાક અધિકારીઓ રાજ્યનું અસ્તિત્વ ખતમ કરી દેશે. છેલ્લા 6 વર્ષથી રાજ્યની જનતા વિશ્વાસ પર બેસી રહી છે. તે આશામાં નેતાઓએ પોતાના અંગત સ્વાર્થ અને પોતાના ભ્રષ્ટાચારની ફાઇલ ખુલવાના ડરથી આપણા ઇતિહાસ, અસ્તિત્વ, સંસ્કૃતિનો નાશ કર્યો છે. હવે તેઓ સ્થાનિક સમાજના સ્વાભિમાનને પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. કેટલું થશે? સ્થાનિક લોકો સહન કરે છે. ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓની સત્તા છીનવાઈ ગઈ છે. પીડબ્લ્યુડી, જિલ્લા પંચાયત, શિક્ષણ, પોલીસ વિભાગ, વન વિભાગ જેવા વિવિધ સરકારી વિભાગોમાંથી હજારો નોકરીઓ છીનવાઈ ગઈ છે. લોકોના મકાનો તોડી રાખવામાં આવી રહ્યા છે. દુકાનો તોડી પાડવામાં આવી રહી છે. આદિવાસી સમાજની અનામત નાબૂદ કરવામાં આવી છે.
રસ્તા પર બેસીને નાના ધંધાઓ કરી શકતા નથી. સરકાર અને કંપનીઓમાં નોકરીઓ મળતી નથી. નેતાઓ તમાશો જોઈ રહ્યા છે. મોદી સરકાર દ્વારા દિવસે ને દિવસે મોંઘવારી વધી રહી છે. બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમાએ છે. નેતાઓની વાત સાંભળવામાં આવતી નથી. આખું શહેર ખાડામાં છે. એવું છે કે કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓની મનમાની વધી રહી છે તો સ્થાનિક સમાજને આટલો અન્યાય કેમ? ક્યાં સુધી રાજ્યની જનતા નેતાઓના ભરોસે બેસી રહેશે? હવે જે પૈસાના આગેવાનો સ્થાનિક સમાજની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે, જનાર્દનને વિનંતી છે કે દાદરા નગર હવેલીને બચાવો તો પ્રજા હવે પોતાના હકો, પોતાના સ્વાભિમાન અને અસ્તિત્વની લડાઈ પોતે જ લડવી પડશે અને પોતાના વ્યક્તિગતને અને આગેવાનો પક્ષોને સાથે રાખીને લડત શરૂ કરવી પડશે. નહીંતર આવનારી પેઢી ક્યારે માફ કરે નહીં. આ લડાઈમાં હું જનતાની સાથે છું. ये हमारा जो स्वाभिमान, अस्तित्व और हक अधिकार आंदोलन रैली हम करने जा रहे हैं. ये रैली जो दादरा नगर हवेली में प्रशासन सिस्टम में दो सिस्टम चल रही है. आम जनता के लिए अलग, बीजेपी वालों के लिए अलग, और मुंह देख के जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है. आज अगर हम बात करेंगे, लास्ट अभी 2-3 दिन पहले हमें मुझे संदेश मिला कि रांधा में अचानक से नोटिस देकर तकरीबन 60-70 लोगों की दुकान तोड़ गई है. ठीक है, इलीगल था, लेकिन ये जो किया जा रहा है, मैंने बार बार बोला है कि दादरा नगर हवेली में बाहुल आदिवासी विस्तार है. आदिवासियों के लिए एक विशेष प्रोविजन है. बार बार कह रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद भी कह गए कि अनुसूची 5वीं की लेकर प्रोविजन है. भले दादरा नगर हवेली अनुसूची 5वीं में नोटिफाइड नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आदिवासी विस्तार है, उस विस्तार में अनुसूची 5वीं के दायरे में रहकर, उसके गाइडलाइन में रहकर कार्य करने का प्रोविजन है. वो स्पष्ट है. तो अगर वहां पर जाकर ये जो काम किया गया जिला पंचायत विस्तारों में, नगर पालिका विस्तार में सैकड़ों दुकानें हैं जो इलीगल भी है, जो भी शेड के नाम पर चल रहे थे. तो जो भाजपा से जुड़े हैं, जो भाजपा के जो व्यापारी लोग हैं, उनके दुकानें बचे हैं, उनके शेड बचे हुए हैं. बाकी आम जो लोग हैं, आम व्यापारी जो है, उनके परेशान किया जा रहा है. अच्छा, ये जो कानून अगर रांधा में लगा, क्या वो नगर पालिका में नहीं लगता है? अच्छा, नगर पालिका विस्तार में फुटपाथ पे बैठकर दुकान चला सकता है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में आदिवासी समाज के, जो स्थानिक समाज के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के समाज के लोग हैं, वो रोड पे बैठकर सब्जी भी बेच नहीं सकता है, वो टपरी नहीं चला सकता है. तो खाएगा क्या? लास्ट 6 साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों की नौकरियां छीनी गई है प्रशासन ने. प्रशासन नौकरियां नहीं दे रही है, लेकिन जो छोटा मोटा कामकाज करके जो अपना रोजगार चला रहा है, अपना घर चला रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है. तो ये अभी हमारे दादरा नगर हवेली में अभी जो मूल समाज है, स्थानिक समाज है, जो बरसों से यहाँ पर स्थायी है, उस समाज को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी जो आने वाले 16 नवंबर को जन आंदोलन करने जा रहे हैं. और शासन प्रशासन में हम अवगत करना चाहते हैं, आपको अभी या तो सुधरो या फिर हमें जनता को लेकर रोड पर उतरने के लिए मजबूर मत करो. और ये एक चेतावनी रैली है प्रशासन को. जो भी प्रशासन सिस्टम में जो बैठे हैं, आप कानूनों की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोग ही खुद ही जो सिस्टम में बैठे हैं, वही लोग अगर कानून और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हमको कहां जाना चाहिए? यहां देखा जा रहा है कि अगर नेता कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी कुछ नेता कह रहे हैं कि हम तो विकास देखकर हम तो भाजपा के साथ इसलिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता का क्या? यहाँ को जो बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ जो नुकसान हो रहा है, यहाँ जो हमारा अस्तित्व का, हमारे स्वाभिमान की बात आ रही है. अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ नेता, अभी जो लोगों ने इतना बड़ा दादरा नगर हवेली जो मूल समाज के ऊपर, स्थानिक लोकल समाज के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि ये भाई बरसों से यहाँ पर जो लोकल समाज है, वो समाज आतंक की राजनीति करते थे. अगर आतंक की राजनीति करते तो क्या 3-4 हजार कंपनियां ऐसे ही आई? तकरीबन 4 से 5 लाख जो समाज, जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर बसे हैं, रोजगार का है, एक आम से आम आदमी यहाँ पर कमाना है, आज लखपति बन गया, करोड़पति बन गया है, वो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता है. तो क्या वो आतंक की राजनीति के समय में हुआ वो सारी चीजें लेकर? तो ये जो भाजपा के जो नेत्री है राहटकर जी ने जो बोला है, हम ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगे. अभी तक माफी नहीं मांगी है, वो माफी नहीं मांगती, अभी भी हमको मौका दे रहे हैं. अगर नहीं माफी मांगती है तो ये आंदोलन के माध्यम से उनका बड़ा उग्र विरोध होगा और उसका जिम्मेदार भाजपा रहेंगे, जो उनके जो पदाधिकारी है वो रहेंगे. साथ ही ये लोगों ने क्या कि भाई आदिवासी समाज है, हम कह रहे हैं कि भाई 2 समाज है, आदिवासी समाज है और एक समाज ऐसा है जो वन में आके रहा है, वो वनवासी समाज है. लेकिन ये लोग आदिवासी समाज को जो बार बार वनवासी कह रहे हैं, आदिवासियों, ये जो हल्की लैंग्वेज में जो बार बार हमारा जो अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे. ठीक है, जो नेता को जो स्पेशल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुझे वोट की परवाह नहीं है. मेरे लिए दादरा नगर हवेली का समाज जो वर्षों से स्थायी है, लोकल स्थानिक समाज है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. और ये सारी चीजों को देखकर
हम लोगों ने आने वाले 16 नवंबर को अभी सामने, और इसकी शुरुआत हम लोग अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो घटना हुई है रांदा में, हम वहां पर जा रहे हैं। हमने कहा कि हम आ रहे हैं, ठीक है वहां पर इलीगल था, लेकिन कैसे क्या है, वो जमीन किसकी थी ओरिजिनल, अभी अगर ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि भाई ये सरकारी जमीन थी। मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी मतलब क्या, प्रशासन सरकार है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन मतलब क्या, किसकी, कौन सी सरकार की? केंद्र के मोदी सरकार, जो 5 साल की जो सरकार है उसकी जमीन है। कौन सी सरकार? दानव प्रशासन स्पष्ट करे, प्रशासन की जमीन है या जो केंद्र में जो 5 साल की जो सरकार बैठी है उसकी जमीन है? जमीन भारत सरकार की है, तो भारत सरकार कौन? ये हम सवाल करने जा रहे हैं इनको। और ये यही नहीं, आने वाले दिनों में और बहुत सारी समस्या आ रही है। उस समस्या को लेकर हम अभी जनता को आह्वान कर रहे हैं, आपके जो जिनको भी वोट देकर नेता बनाया है, वो दादरा नगर हवेली को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नई नौकरी मिलने पा जा रही है, या तमाम हर चीज में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी परेशान है, यहाँ पर व्यापारी परेशान है, यहाँ पर जो आम मजदूर है वो परेशान है, यहाँ पर जो या ट्रक में या जेसीबी जो यहाँ मिट्टी के काम करते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको हम, खान खनिज को लेकर यहाँ पर जो काम करते थे वो परेशान है। हर एक वर्ग परेशान है। अभी एक मुझे पीडब्ल्यूडी को मैसेज मिला कि भाई 300-350 लोगों को यहाँ पर हाई कोर्ट में रखने के लिए बोला है, और उसके अगेंस्ट में प्रशासन सुप्रीम गया है। मुझे ये पता नहीं कि दादा ने जो प्रशासन है यहाँ की जनता के लिए काम करना है या किसी अन्य के लोगों के लिए। भले आप अन्य राज्यों से आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए नियुक्ति हो जाती है कि जो यहाँ समाज है, यहाँ स्थायी हुआ है, यहाँ स्थानीय समाज है, उनके लिए कार्य करना था। लेकिन ये पूरे देश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए मोदी जी बैठे हैं, और यह जो केंद्र में सरकार आती है वो बैठी है। पूरे देश के लोगों के बारे में यहाँ का प्रशासन नहीं सोचे। प्रशासन को सोचना काम है यहाँ की जनता के लिए हक अधिकार, यहाँ नौकरी धंधा और ये जो स्थायी हुआ है और यहाँ रोजी रोटी कमाना है उसके बारे में है सिर्फ चिंता करे। अगर पूरे भारत से लोग यहाँ भरते रहोगे तो हमारा लोग यहाँ जो स्थायी हुए वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जितनी भी समस्या है, इन 5-6 साल में जितनी भी समस्या हुआ है, हम यहाँ से किन्होनी पंचायत से हमारे तकरीबन 1000 की संख्या में हम बाइक रैली के माध्यम से आंदोलन करेंगे, और पूरे नगर हवेली में ये जो हमारा जो नगर पालिका विस्तार है उसमें घूमेंगे। उसके बाद जो बिरसा मुंडा चौक है किले नाके पर हमारी जाहिर सभा रहेगी, और उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। खुलकर ये चर्चा करेंगे जो जनता की समस्या है, जो जनता के मुद्दे है, एटलीस्ट हम उसको पर प्रशासन के सामने अवगत करें, और प्रशासन का इसका रोल क्या है। और उसके बाद हमने जो सही मायने हमें आंदोलन करना है, उसके बाद हम यहां से जो 16 नवंबर के बाद हम डिक्लेयर करेंगे, जो उसके बाद हम अनिश्चित काल के लिए भी शुरुआत करेंगे। अगर उसमें प्रशासन का कैसा रवैया रहता है, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, बाकी जिस हिसाब से नेताओं को और यहाँ पर जिस तरह दबाया जा रहा है, जिससे परेशान किया जा रहा है, अगर ऐसा प्रशासन कुछ भी हरकत करता है तो बिल्कुल हम लोग भी उसके तैयारी में है। और बिल्कुल अब तो यहाँ तो हमारा अस्तित्व को सवाल बात आई है, बिल्कुल हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान है, दादा नगर में तमाम जो राजनीति के नाम की जो दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी बैठा है, जो भी एनजीओ संगठन जो भी बैठा है यहाँ पर प्रदेश हित में, दादा नगर के हित में, वो सभी मेरे नेतृत्व में, क्योंकि मैंने 2-3 साल से कह थक गया सभी नेताओं को कि भाई आप आंदोलन करो, हम पूरी टीम के साथ आएंगे, ये करेंगे, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। अभी हम कह रहे हैं ये 16 नवंबर अभी आज से हमारा मूवमेंट शुरू हो रहा है। इस मूवमेंट में दादा नगर हवेली के अस्तित्व के लिए, जिनकी नौकरी धंधा हक अधिकार सुरक्षा या अस्तित्व की बात आ रही है, जो भी समस्या चल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर मेरे नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो रहा है। और चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जो यहाँ के स्थानिक जो भी नेता हो, या जो भी पार्टी पक्ष के सभी लोग इस आंदोलन में जुड़े, और प्रदेश की जनता के जो भी इश्यू, जो भी मुद्दे हैं, एटलीस्ट जाहिर में आकर चर्चा करें। मुझे कुछ ऑफिसरों से बातें भी हुई कि आप लोग क्यों इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हो, तो मुझे बताया कि टोकिया जी ऐसा है कि हम लोग तो ऊपर से आदेश आते हैं और हमको तो कानून और संविधान के दायरे में काम करना होता है, लेकिन आपके जो लोग हैं, आपके जो सरपंच है, आपके जो जिला वाले हैं या आपके जो जनप्रतिनिधि है, वो इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम ऊपर रिपोर्ट क्या दें? अगर चलो हम लोग जेसीबी लेकर हम पुलिस के साथ निकलते हैं, तो सामने अगर उसकी सुरक्षा को लेकर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो पंचायत के लोग बैठे हैं, वो एटलीस्ट आकर चर्चा करें कि क्या है क्या नहीं, ताकि हम लोग बाद में ऊपर रिपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई आने का तैयार नहीं, फिर हमको तो रिपोर्ट देना होता है ऑफिशियली, हमें तो जो ऊपर से आदेश आता है उसके साथ काम करना होता है। तो समस्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है यहाँ पर कि कहीं न कहीं, सिर्फ मैं यही नहीं कह रहा हूं सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है, बहुत कुछ चीजों को लेकर प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हमारे सांसद है, ये जिला पंचायत की पूरी टीम है, बीजेपी की जो नगर पालिका है, और जो भी सत्ता पक्ष में एक बैठकर जो प्रशासनिक जो अधिकारियों के कुछ जो चाटुकार जो बन गए हैं और नगर हवेली को जो बर्बाद कर रहे हैं, वे सारे लोग जो हाल फिलहाल में जो सिस्टम बैठे हैं, सत्ता विपक्ष एक हो गए, ये सारे चीजें लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए अभी नगर हवेली को बचाने के लिए पूरे दादा नगर हवेली की जनता को हम आह्वान कर रहे हैं
कि आओ हमारे साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। और एक देश एक कानून की बात हो रही है, यहाँ दो कानून जो चल रही है, दो चेहरे देखकर जो कानून की कार्यवाही की जा रही है, उससे हर जगह पर तकलीफ हो रही है। पूरा सिलवासा गड्ढे में है, रोड कहाँ है पता ही नहीं है, उसको और काम नहीं हो रहा है। कई डिपार्टमेंट में अभी 3-3 चाचा पापा से मैंने सैलरी नहीं दिया रहे। तो ये जो पूरी अव्यवस्था चल रही है, आपको विकास विकास विकास, तो फिर ये अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि पहले हम यहाँ से सिलवासा से जब निकलते, जब महाराष्ट्र से गुजरात में जाते, हमको पता चलता था कि महाराष्ट्र आया है या गुजरात है। क्यों? कि रोड खराब होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि अभी सिलवासा से हम जैसे बाहर धीरे धीरे निकलते हैं और जब महाराष्ट्र में घुसते हैं तो पता चल जाता है नहीं महाराष्ट्र आ गया होगा या गुजरात आ गया। ये परिस्थिति, ये नौबत आई क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? ये सारी जोक लेकर हम खुलासा करने वाले हैं। बहुत सारी हर एक बिंदुओं पर, हर एक मुद्दे के ऊपर हम बिरसा मुंडा चौक पर 16 नवंबर को 4 बजे रैली के बाद हम जाहिर सभा करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही मैंने आगे भी बोला है, ये प्रशासन ये नहीं समझे कि सभी नेताओं को हमने हमारे खेमे में बिठा दिया है इसलिए हम यहाँ कुछ भी करेंगे। अभी यहाँ पर विपक्ष का जो रोल है वो यहाँ की जनता करेगी। और जनता के लिए जहां कहीं मुझे आवाज करनी है विपक्ष के तौर पर, जनता के हक अधिकार के लिए, हम हमारी टीम शासन प्रशासन के सामने जो सही, अगर प्रशासन सही काम कर रहा है तो उसके समर्थन में है। अगर ऐसी कोई भी गलत नीतियां बन रही है, कानून और संविधान को ऊपर जाकर काम करेंगे तो बिल्कुल उनके सामने प्रशासन को हम अल्टीमेट देंगे चुट कर कि जहां अगर आप सही कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, अगर लेकिन गलत हो रही है तो हम आपके सामने होंगे। ये हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन प्रदेश के नेताओं तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस मूवमेंट के साथ, इस आंदोलन के साथ दादनगढ़ अस्तित्व बचाने के लिए ये संविधान की रैली है, अस्तित्व की रैली है और हक अधिकार के लिए बचाने के लिए रैली है, उसमें जुड़ने के लिए आप सभी निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, और वो हमारे साथ जुड़े। समाचार पूरा करता पहला एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સેલવાવના સંતો ડેડિયાપાડાના જીર્ણ થઈ રહેલા હિન્દુ મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરશે। સેલવાવ જલારામ મંદિરમાં નવરાત્રીના આઠમના હવન કરવામાં આવ્યા। કેશવ બટાકે હાઈ કમિશનરના આમંત્રણે ગાંધી જયંતિ કાર્યક્રમમાં લંડન પહોંચ્યા। 16 નવેમ્બરે અભિમાન અસ્તિત્વ અને હક અધિકાર જન આંદોલન રેલી શરૂ થશે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો। જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।